So hello everyone, welcome back to another video. And before I talk about anything, I just want to mention what the hell just happened in this one single day that I went from 40 subscribers to 170 subscribers. That was a crazy rise. Thank you so much to YouTube for recommending my videos to other people. And another thing as well, thank you so much to all of you guys who came here and subscribed and joined my journey. And I see a lot of these comments, and they're just so inspiring and so beautiful, how they all are promising me to join from today, some tomorrow, and some asking me some advice who are in class 11th right now. And it's just beautiful. Okay, so I will mention your guys' comments at the end of the video, but for now, let's not get all of these things in my head and let's just talk about what we talk about every single day. Okay, so today was pretty good actually. Today's morning was the best actually, because सुबह मैं उठा and the instant I woke up, I was like, okay, let's go for a run. And I just decided from today that I will go for a run every single day, just like a discipline thing that I'm trying to do right now. And I went for a run for 10 minutes. After I came back from the run, I meditated for 10 minutes as well. So meditation udhar hi check ho gaya. Next thing, I started planning to stream today because I wanted to stretch today. Like I said yesterday as well, that I had to stretch today, a 13 to 14 hour study, then only I would be able to meet my goals. And I can see that right now. I did not stretch 13-14 hours, so I couldn't meet all my goals. But anyways, I'll come to the goals in a bit. So yeah, but then I started my stuff and I completed alcohol, phenols and ethers. Only a few, some questions are remaining and a few topics are remaining. Okay, like jisme wo zymase and stuff which is forming, that part is remaining. Otherwise, everything is done in alcohol, phenols and ethers. Alcohols is done, phenols is done. Some chemical properties of alcohols are remaining. Then ethers is also done. So yeah. That was amazing. After that, I started integration, which as you can see, I was still looking at some questions. And integration it's fun to do, but sometimes ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी, like I was looking at a question, almost हर एक question में one by one, -3 को -1 -2, फिर इसको वो इसको ये, it's just crazy. But anyways, I did do a lot of integration today. You wouldn't believe me, but this is my today ka maths ka kaam. A lot of pages, okay? You would believe me, why won't you? That's my maths ka kaam. Then I also did some matrices, ठीक है? क्योंकि वो भी मेरे goals में था. और matrices का almost पूरा खत्म हो गया, बस खाली miscellaneous exercises remaining. And I guess there's nothing hard in this chapter, it's just calculation. Seriously, just calculation. Determinants में थोड़ा hard होगा, I know. So yeah, और determinants आज मैं नहीं कर पाया. So okay, rather than saying it like that, let's just check our goals for today. So this was my goal thing. Yeah, so these were my goals and this is how much I completed. जितना भी crossed off है उतना. English काफ़ी कम कर पाया मैं आज, क्योंकि मैंने सोचा कि English let's not take it as a main target because other exams के बीच में कोई gap नहीं मिलने वाली मुझे. So I just thought about completing other stuff. EMI मैंने 50% रीड कर दिया है, 50 to 60% हो गया एक्चुअली, बहुत कम बाकी है. बट AC रीड नहीं कर पाया मैं, डिटर्मिनेंट्स नहीं कर पाया और इंटीग्रल्स की 2 एक्सरसाइजेज नहीं कर पाया बिकॉज द फर्स्ट 2 took a lot of time. Okay, so yeah, that was my goals for today. Now let's revise the daily checklist. Number 1, 30 PYQs. I could not do the 30 PYQs बिकॉज जैसे हाफ ईयरली नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मुझे फोकस हटाना नहीं है हाफ ईयरली से. आई स्वेयर टू गॉड गाइस, एक वीक में 10 दिन में कुछ हाफ ईयरली मेरा ख़त्म हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट आई एम गोना डिवॉर दोस 30 PYQs. नॉट 30 एक्चुअली, 100, और 100 से चालू करना थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा. आई वुड स्टार्ट विथ 70 PYQs. ठीक है, एक वीक 70 जाएंगे, उसके बाद 100 चल जाऊँगा मैं. बट अभी के लिए लेट्स नॉट डू, ओके, बिकॉज अब बहुत ही क्लोज आ चुका है हाफ ईयरली. कंसिडरिंग टेक्निकली टुडे इज 16th of September. कल मेरी एग्ज़ाम है इंग्लिश की, और उसके बाद सिर्फ एक दिन के गैप के साथ दूसरी भी एग्ज़ाम्स पाइल ऑन है. ठीक है, सो या दैट्स दैट. मेडिटेशन आई डिड 10 minutes. ओके,
फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो ऑफ कोर्स, मैंने जैसे पहले ही बोला, आई वेंट फॉर अ रन 10 मिनट्स का एंड आई डिड 30 पुशअप्स एंड आई डिड ट्राई ए पुल अप टुडे. मैं नीचे था, सुबह सुबह उठ के तुरंत नीचे गया था एज आई सेड, एंड आई ट्राइड सम पुल अप्स ओवर देयर. मगर ऑब्वियसली हुआ नहीं, बट या जब होगा आई टेल यू गाइस. uploading video right now. And JEE Mains study I did not do today, specifically JEE Mains के लिए. मगर honestly bro, NCERT के integrals की exercise is actually good, you know, like comparison with RD Sharma also. RD Sharma में obviously बहुत सारे और भी अच्छे questions हैं, and मैं ऐसा देख रहा हूँ धीरे धीरे. एडवांस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, फॉर नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस. मगर मेंस से कंपैरिजन में मैथ्स इज़ गुड इन NCERT एंड RD शर्मा, क्योंकि मेंस का लेवल अचीव कर पाता है RD शर्मा. आई कैन सी दैट. मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, RD शर्मा कैन अचीव मेंस लेवल, ठीक है. एडवांस इट माइट नॉट. So that was it for today for the tasks and stuff. Now let's talk about some comments because मैं हर एक का reply कर नहीं सकता था आज. It was a lot of comments. First I want to take up the most recent comment. It's just 27 minutes ago. It says, hello, just wanted to know that how was your 11th for JEE? Please refer me a book for PYQs. So 11th का prep was not that good, mine. In school exams I got 86%. In JEE however, काफ़ी सारे चैप्टर्स मेरे ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल तक क्लियर नहीं हुए थे. काफ़ी सारे ऐसे भी थे जो काफ़ी अच्छे लेवल तक क्लियर भी हो गए थे. मगर आई वुड से कि मेरा 11th का प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू JEE लेवल फॉर नाउ इज़ अराउंड 35 to 40%, एंड या अदर 60% इज़ नॉट दैट गुड. सो या इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा 15 अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाए 12th का, सो आई कैन मूव डायरेक्टली टू 11th. एंड आई स्वेयर टू गॉड ब्रो, 11th बहुत अच्छे से कर देना है मुझे. फिर कमेंट था, मैथ्स का क्या प्लान है ब्रो, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीड. मैथ्स का प्लान भाई RD शर्मा करूँगा फॉर JEE मेंस, और फॉर JEE एडवांस ब्लैक बुक है, सेंगेज है. आई ऑल्सो डू सेंगेज. मगर अभी के लिए एज आई सेड इन माई वेरी सेकेंड वीडियो आई गेस कि मैं मेंस पे फोकस कर रहा हूँ कम्प्लीटली. बिकॉज एक बार मेंस हो जाएगा, January अटेम्प्ट अच्छे से चला जाएगा, उसके बाद भाई टाइम ही टाइम है एडवांस के लिए. और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं एडवांस काफ़ी अच्छे से पढ़ पाऊँगा उतने टाइम में. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Also, Geeky Grind commented on my video, and that is crazy, bro. I watch you, and thank you so much for your wishes, भाई. आपको भी very much all the best. आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, and I'm pretty sure आप भी कर दोगे. Then there was a comment by Doraish224. I'm so sorry if I'm pronouncing your name wrong. और उन्होंने बोला कि I'm in 11th right now. जितने चैप्टर्स हुए वो सारे अच्छे से कर रखे हैं, मगर कुछ चैप्टर्स में 5 out of 10 PYQs हो रहे हैं, कुछ चैप्टर्स में 3 out of 10 हो रहे हैं. हाउ डू आई इम्प्रूव माई लेवल? आई वुड से सबसे पहली बात यही है कि जितने ज़्यादा तुम PYQs करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें आइडिया आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे इन लोग पूछते हैं. क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ पैटर्न. 11th का मुझे अब थोड़ा ना वो याद भी करना पड़ेगा, रिमेम्बरिंग फैक्टर नहीं है कि JEE के क्वेश्चंस किस तरीके से हुआ करते थे. मगर जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम ले लो ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ग्रेविटेशन में मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं. एक बार नोटिस करना कभी, अगर ग्रेविटेशन अभी तक नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल ले लो वर्क पावर एनर्जी या फिर लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन में डायग्राम बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. अब कहीं पे भी नोटिस करना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लॉज ऑफ मोशन के होते हैं. तो इसलिए अब तुम्हें एक चीज़ पता चली कि डायग्राम बेस्ड इस चैप्टर में से आने वाला है, तो तुम उस चैप्टर का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ही सॉल्व करो. ही मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि दूसरी चीज़ें साइड में रख दो, मगर एज सुन एज अ डायग्राम क्वेश्चन कम्स you should know that okay, I need to focus more over here. Then as you keep on solving questions, you would know कि अच्छा equations ऐसे बनानी है diagram की, this is mg over here, the acceleration goes here, and then the concept starts clicking so quickly and so easily that it feels easy to you now. Or I'm telling you bro, it's all about practice. As many PYQs as you do, you will improve. और रेफरेंस बुक्स ऑब्वियसली बात है यूज़ करना है, मगर सिर्फ रेफरेंस करते रहेगा ये भी नहीं करना. रेफरेंस बुक में से 100 अच्छे क्वेश्चन कर लो, PYQs तुम 200 लगाओ, ज़्यादा फायदे में रहोगे. दैट इज़ आई गेस माई थिंग. अगर इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ टेल मी, ओके. बट या
And for reference book also, many people were asking me reference books. Oh, I'm so sorry, I didn't mention the reference book for PYQs. PYQs के लिए एक reference book मैं अभी दिशा यूज़ करता हूँ, दिशा errorless. मगर आई हैव हर्ड समवेयर कि दिशा में बहुत सारी एरर्स है errorless में. सो फॉर नाउ आई यूज़ मार्क्स की एप्लीकेशन और वेबसाइट. ठीक है, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च, इट्स marks.com आई गेस, एंड उसके अंदर सारे PYQs मिल जाते हैं. ऑल्सो एग्जाम साइड करके एक वेबसाइट है, उसमें भी सारे PYQs मिल जाते हैं. सो यू कैन ईजीली डू फ्रॉम देयर. There was one more comment by Akul99i80 जिनका रिप्लाई दक्ष ने किया था. And Daksh, amazing advice bro from your side as well. And I would like to add in this advice कि उन्होंने बोला कि I lack clarity in small parts of the chapter. And here I completely agree with Daksh कि your concepts are not clear at all. If you lack clarity in small parts of the chapter, मतलब तुमने बीच में छोड़ दिया या फिर बीच में तुमने समझना छोड़ दिया. एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू ब्रो. क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, चैप्टर हमेशा एक कनेक्शन में चलता है. एंड आई एम टेलिंग यू, क्लास 12th इज इवन डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्ट इन दिस केस क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, हर एक चैप्टर इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस चैप्टर. तुमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हार्डली कुछ समझ में आएगा. और करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि वो थोड़ा और 10th से रिलेटेड है. मगर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भाई. और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म अगर नहीं पढ़ा तो EMI, AC ये सब तो हाथ से गया तुम्हारा. तो पहली बुक ऐसे ही ख़त्म हो गई. तो इसलिए कहीं भी तुम नीचे अगर बीच में अटक रहे हो, यू सेड कि यू आर इन अ कोचिंग एज वेल, सो स्टॉप योर टीचर एंड आस्क योर डाउट्स ना भाई. क्यों, अगर मैं अटका इधर तो मैं पूछ लूँगा तुरंत कि भाई ये मेरा डाउट है, प्लीज़ सर मुझे मदद करो इसमें. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम स्टडीइंग EMI राइट नाउ, और मुझे आया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस EMF इज़ द सेम, पर मुझे अभी भी डाउट आ रहा है क्योंकि वो सेंटेंस ठीक से लिखा नहीं है. तो मैंने ChatGPT से पूछ लिया, या फिर आप कोई टीचर से पूछ लो तुरंत ही कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन. क्योंकि डरने से अभी ऐसा सोचोगे ना भाई कि नहीं यार मुझे पूछना नहीं है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. ब्रो, इफ़ यू थिंक लाइक दैट, यू आर गोना गेट नोवेयर. दूसरे लोग क्या सोचेंगे वो सोचने पे अभी तुम तुले पड़े हो, तो फिर वो भी सोच लो दूसरे लोग क्या सोचेंगे जब तुम कामयाब नहीं होगे. ठीक है, सो प्लीज़ जस्ट आस्क डाउट्स. जैसे ही दिमाग में कुछ भी आता है, कितना भी स्टूपिडली सिली लगे, पूछ लो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें बहुत सारे डाउट्स पूछने पड़ेंगे कि सर ये इधर जाके इधर ही क्यों रिएक्ट हुआ, ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाया, सर ये रिएक्शन होगा कैसे. ऐसे डाउट्स भी पूछ सकते हो तुम. ठीक है, कि सर ये रिएक्शन ही कैसे होगा, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये रेजोनेंस क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो जस्ट आस्क वट एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, डू नॉट हेजिटेट एट ऑल. Hesitation will get you nowhere, bro. On that note, again, thank you so much, guys, for all the support you guys have shown me. My last video is at 1,400 views right now, and goddamn, I never thought I would be able to achieve that this quick in this journey. Never ever. So thank you so much. Thank you so much for watching, guys. I'll see you in the next one. Until then, peace. Bye bye. Keep studying and work hard. Okay.